عوام دشمن ہر دستور نامنظور نامنظور عوام دشمن ہر دستور نامنظور نامنظور عوام دشمن ہر دستور نامنظور نامنظور عوام دشمن ہر دستور نامنظور نامنظور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ جتنے بھی آج کے اس پروٹیسٹ کے آرگنائزرز ہیں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ یہاں پر جمع ہوئے اپنے وطن میں جو جاری تحریک ہے اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے، جو وہاں پر ظلم و بربریت کی جا رہی ہے اس کی مذمت کرنے کے لیے. اور میں آپ سب کے بہاف پر یہاں سے اپنے وطن میں پاکستان کے زیر قبضہ جو جموں کشمیر ہے اور گلگت بلتستان ہے وہاں کے سارے باشندوں کو آپ سب کے بہاف پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی حقوق کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے، اپنے حق ملکیت کے لیے، اپنے حق حاکمیت کے لیے جو جدوجہد ہے، جو تاریخی اور بے مثال جدوجہد گزشتہ 1.25 سال سے جاری ہے، یہاں پر امریکہ میں اور نیو یارک میں جتنے بھی آپ کے ہم وطن ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ آپ کو کسی بھی صورت میں لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے اور آپ کی پشت پر ہمیشہ کی طرح موجود رہیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تاریخ کے ایک بہت ہی نازک اور اہم موڑ پر جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی جو مجموعی آزادی کی اور حقوق کی تحریک ہے وہ کھڑی ہے. اور اس تحریک میں اس وقت جو اس تحریک کی قیادت کا سہرا ہے وہ پاکستانی زیر انتظام جو جموں کشمیر ہے وہاں کے لوگوں کو ملا ہے، اور بڑی بخوبی سے اور بڑے احسن انداز سے گزشتہ 1 سال میں ایک قوم بنتے ہوئے یکجان ہو کر اتحاد اور اتفاق سے یہ ساری جدوجہد جو ہے وہ آگے بڑھائی جا رہی ہے، اور اس میں بڑی اہم کامیابیاں جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں نے حاصل کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال تک لڑنے کے بعد آپ نے جو کامیابیاں حاصل کی، ان کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے وہاں کی جو اشرافیہ ہے، وہاں کی جو پپٹ حکومت ہے اور وہاں جو ایجنسیز کا نیٹ ورک ہے وہ سارے کے سارے اب اس تحریک کو ہر قیمت پر زور سے، زبردستی سے، کالے قوانین کے ذریعے، تشدد کے ساتھ وہ اس کو دبانا چاہتے ہیں. اور یہ حکمران کلاس کا آخری پناہ گاہ ہے، یہ جو تشدد ہے، یہ جو مقدمے ہیں، یہ جو کالے قانون ہیں، یہ اس کا سہارا لے کر جو ہے وہ تحریکوں کو کچلتے آئے ہیں. اور آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے، وہاں پہ کون کون سی رائٹس وائلیشنز جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. اور رائٹ ٹو فریڈم، رائٹ ٹو ایکسپریشن، رائٹ ٹو فری ایکسپریشن جو ہے اس کو کیسے دبایا جا رہا ہے. یہ جو ابھی ایک نام نہاد قانون بنایا گیا ہے، یہ جس کو پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر آرڈیننس 2024 کہتے ہیں، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک اور جو جس کالے قانون کو آئین کہا جاتا ہے، ایکٹ 74، یہ بھی اسی طرح کا ہی ایک قانون ہے. اس قانون میں بھی نہ ہمیں اپنے نمائندے چننے کا اختیار ہے، نہ ہمیں ووٹ دینے کا اختیار ہے، نہ ہمیں اپنے وسائل کو استعمال کرنے کا اختیار ہے، نہ ہمیں اپنے حق ملکیت کو یا حق حاکمیت کو ایکسرسائز کرنے کا اختیار ہے. اور یہ تو بالکل ہی یہ زبان بندی کا قانون ہے کہ جس کے تحت نہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں، نہ آپ بول سکتے ہیں، نہ آپ لکھ سکتے ہیں، نہ آپ سوشل میڈیا استعمال کر سکتے ہیں، نہ آپ کسی جگہ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں پرامن طور پر. اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ڈپٹی کمشنر اور لوکل SHO جو ہے وہ تشدد کے زور پر آپ کو ڈسپرس کرے گا. یہ قانون ہے، یہ شاید ہی دنیا میں یہ پہلی مثال ہوگی کہ قانون میں واضح طور پر یہ لکھا گیا کہ SHO اور پولیس جو ہے وہ لوگوں کو مار کر جو ہے وہ منتشر کرے گی، وہ ان پر تشدد کرے گی اور ان کو احتجاج نہیں کرنے دے گی. لیکن جو اس قانون کا حشر آپ کے بھائیوں نے، آپ کے دوستوں نے، آپ کے بچوں نے وہاں پہ کیا ہے، چوکوں میں نکل کر، چوراہوں میں نکل کر، خواتین نے، چھوٹے بچوں نے، طلبہ نے
गिरफ्तारियां पेश करके, लाठियां खा के, जुल्म जबर का मुकाबला करके वो बेमिसाल है। और मैं समझता हूं कि अब इस कौम को, और खास कर ये जो खिता जो पाकिस्तान के जेर कब्जा खिता है, यहाँ के नौजवानों को और यहाँ की तहरीकों को दबाना जो है वो मुमकिन नहीं रहा है। अब वहां पर जो कठपुतली सियासतदान है, जो कठपुतली असम्बली है, जितना भी पाकिस्तान नवाज जो वहां पे एक सहूलतकारों का नेटवर्क है, आज वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। आज वो अपनी शक्ल दिखाने के, वो अवाम में आने के काबिल नहीं है। और आज ये साजिशें की जा रही हैं कि किसी तरह उस नाम नेहाद अशराफिया को, जिसके खिलाफ हमने 1.25 साल तक जो है वो जदोजहद की, आज उसको दोबारा जगह दिलाने की कोशिश की जा रही है। ताकत के जरिए, मिन्नत के जरिए, सहूलतकारी के जरिए, काले कवानीन के जरिए, जो भी कोई हरबा है, तहरीक में वोट डालकर, तहरीक को तकसीम करके, हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि आजादी पसंदों की आवाज को, हुर्रियत की आवाज को, तरक्की पसंदी की आवाज को दबाया जाए। आज मिंबर को इस्तेमाल किया जा रहा है, आज मुल्ला को इस्तेमाल किया जा रहा है, आज दहशतगर्द तंजीमों को, उन दहशतगर्द तंजीमों को कि जिनको बैन करके रखा गया, जिन पर जो है वो पूरी दुनिया में पाबंदी लगाएगी, उनको मुनाफिक मुल्क पाकिस्तान और उसकी एजेंसियां और उनके पपेट्स जो आजाद कश्मीर में हैं, आज उनको इस्तेमाल करके लोगों पर फतवे लगाए जा रहे हैं, तहरीक पर फतवे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों के तकद्दस की बात की जा रही है, उस फौज के तकद्दस की बात की जा रही है जो इस वक्त भी इस्लामाबाद की गलियों में अपने लोगों पर गोलियां चला रही है, लाठियां बरसा रही है। उस कातल फौज के तकद्दस की जो है वो बात की जा रही है। आजाद कश्मीर के अंदर से जहां न पानी है, न बिजली है, न रोजगार है, न डेवलपमेंट है, कुछ भी नहीं है। और उसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है और हमारा वकील है और हमारा पुश्तीबान है और हमारा काबा किबला है। ये वो 75-76 साल सियासत है जिसको आबाओ अजदाद की सियासत के नाम पर आज कुछ जो है वो सहूलतकार तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कवानीन के जरिए हो, चाहे वो मस्जिद और महराब के जरिए हो, या चाहे चौकों चौराहों में लोकल सहूलतकारों के जरिए हो। आज इसको इस्तेमाल करके कहा जा रहा है जी हमारे आबाओ अजदाद ने ये किया और हमारे आबाओ अजदाद ने ये किया, जिसका नतीजा आज ये है कि आज 45 लाख की आबादी में से 27 लाख लोग जो हैं वो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं। तो इसलिए आधे से ज्यादा आजाद कश्मीर जिसको कहते हैं नाम नेहाद आजाद कश्मीर, वो आज जो है वो अरब के रेगिस्तानों में या यहाँ पे यूरोप में या अमेरिका में एलियन बनकर बेरोजगारी का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है, दिन दिन रात मेहनत करके अपने बाल बच्चों को, अपने घरों को जो है वो पालने की जो है वो फराइज अंजाम दे रहा है। ये काम हुकूमतों का था, ये काम असम्बली का था। हमारे वसाइल को इस्तेमाल करके हमें रोजगार फराहम किया जाता, हमें वहां पर एडजस्ट किया जाता, हमारे लोगों को मुसलसल 75 साल हिजरत से बाहर निकाला जाता, लेकिन वो सारे अपने पेट भरते रहे और आबाओ अजदाद की जो है वो तहरीक आज़ादी के गुण गाते रहे। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा, आप सारे दोस्तों से ये कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर नामी खित्ते में मायूसी को शिकस्त दे दी गई है, मायूसी को दफन कर दिया गया है। आज वहां बच्चा बच्चा जो है वो चौक में खड़े होकर पुलिस को, फौज को, एजेंसियों को और काले कवानीन को ललकार रहा है, लेकिन उनकी नजरें आप पर इसलिए रहती है कि आप एक फ्री सोसाइटी में हैं। अगर यहाँ भी हम डरें, अगर यहाँ भी हम एम्बेसियों को देखें, अगर यहाँ भी हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की पार्टियों को लेकर आए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसके बाद हमें कोई हक हासिल है कि हम हुर्रियत की बात करें, हम आज़ादी की बात करें या हम किसी पर तनकीद करें। इसलिए ये जरूरी है कि आने वाले दिनों में ये तहरीक जब आगे बढ़ रही है, अपनी मंजिल की तरफ जा रही है, हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो बैरून मुल्क जो हमारा डायस्पोरा है, खासकर इस मुल्क में, ये मुल्क जो है ये हर लिहाज से एक इम्पोर्टेंट मुल्क है। तो ऐसा जब भी कोई एहतजाज होगा या जब भी कोई ऐसी मनसूबाबंदी की जाए, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि उसके लिए एक कैंपेन चलाई जाए, उसके लिए मुहिम चलाई जाए, उसके लिए दोस्तों को आगाह किया जाए, फैमिलीज को, बच्चों को। ये जगह जो है वो आपको ये सहूलत फराहम करती है। अगर आप आज़ाद कश्मीर में डरते हैं, अगर आप आज़ाद कश्मीर के चौकों चौराहों में बच्चों को भेजने से डरते हैं, और लोग डरते हैं, डरना भी चाहिए, इसलिए कि वहाँ जो कवानीन ऐसे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं डरना चाहिए, यहाँ पर आपको उनकी पुष्ट पर खड़ा होना चाहिए और यहाँ पर कश्मीरियों के बावकार एहतजाज होने चाहिए। बावकार एहतजाज से मुराद आप समझते होंगे
کہ बावकार एहतजाज क्या होते हैं। हम एक मशहूर कौम है, एक पूरी दुनिया में जानी जाने वाली कौम है, इसलिए कि जहां खड़े हैं वहां ही आज से 77 साल पहले जो मसला पेश हुआ था अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे, पहला मसला जो है वो कश्मीर का मसला है। और अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा को या अमेरिका को या आलमी ताकतों को या इंटरनेशनल लॉबी को जो है मुतहर्रिक करने में कामयाब नहीं होते हैं तो ये हमारी नाकामी होगी, ये हमारी लापरवाही होगी, ये हमारी सुस्ती और मौका परस्ती होगी और ये हमारी मसलियत पसंदी होगी। इसलिए सारे टाइम में से बहुत थोड़ा टाइम, जब भी आप महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में कोई कॉल दें तो यहाँ पे 1000-1500 बंदा जो है न्यूयॉर्क शहर जो है वो उसमें कश्मीरी इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ पे आज़ादी पसंद फैमिलीज जो है वो आबाद है, बहुत बड़ी तादाद में आबाद है, जिनकी एक पूरी तारीख है कि वो गुज़श्ता 70-75 साल से कश्मीर में लड़ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ आए हैं तो यहाँ भी इस फ्री सोसाइटी में वो अपना किरदार अदा करने के लिए निकालें। अगले दिनों में, आने वाले दिनों में, ये जो आपको पता है कि 5 दिसंबर को एक पहिया जाम और शटर डाउन की कॉल है और 30 तारीख को भी एहतजाज की कॉल है, 26 को, 27 को, 28 को, 29 को हर रोज जो है वो एहतजाज हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, हर रोज गिरफ्तारियां हो रही हैं, हर रोज लाठी चार्ज हो रहा है, पुलिस दंदना रही है, घरों में घुस रही है, चादर और चारदीवारी का जो है वो तकद्दुस पामाल कर रही है। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए आज़ाद कश्मीर के इस नाजायज हुक्मरान को, अनवार उल हक को ये कहना चाहता हूँ, आज शाम को वहाँ पे जो एक कोई मीटिंग हुई है गुज़श्ता शाम को, तो वहाँ पे उसने कहा है जी कि सबसे मुशावरत करके तो कोई फैसला करेंगे। सबसे क्या मुशावरत करनी है? बैरिस्टर सुल्तान 3 जलसों में कह चुका है कि मुझसे पूछे बगैर ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, काला कानून है। राजा फारूक हैदर सरेआम कह चुका है काला कानून है। शाह गुलाम कादर सरेआम कह चुका है काला कानून है। पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ने की धमकी दे चुकी है कि ये काला कानून है। तो ये कौन नाफज कर रहा है ये कानून? अगर ये सारे जिनके मैंने नाम लिए हैं ये सब हुकूमत में शामिल हैं, ये सारे चोर जितने भी हैं ये सब हुकूमत में शामिल हैं, लेकिन जब ये लोगों के सामने जाते हैं तो कहते हैं जी हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये काला कानून है, इसको नहीं होना चाहिए। एक साहब कहते हैं कि जी ये तो डीसी के पास पहले से ही इख्तियार मौजूद है, तो एक नया कानून लाने की क्या जरूरत थी? तो जब अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात की बात हो तो हुकूमत गायब, जब कानून नाफिज करने की, इस तरह के काले कानून नाफिज करने की बात हो तो हुकूमत गायब, जब अवाम पर चढ़ाई करने की बात हो तो एजेंसियां अंदर और हुकूमत गायब। अगर हुकूमत नहीं कुछ कर सकती, अगर हुकूमत वहां पे अपना आईनी कानूनी वजूद नहीं रखती, तो फिर हर तीसरे दिन ये बकवास करने की क्या जरूरत है कि सिस्टम को लपेटा जा रहा है। कौन सा सिस्टम है आज़ाद कश्मीर में? आप में से कोई बंदा बताए कि आज़ाद कश्मीर में कोई सिस्टम है, कोई चीज वहां पे चल रही है। हमें पता हो वहां किस पार्टी की हुकूमत है, हमें पता हो वो कितना अरसा रहेगी, वहां कौन सा आदमी साहिब इख्तियार है, कौन आदमी कानून जारी करता है, कौन आदमी लाठीचार्ज का हुक्म देता है, कौन आदमी मुकदमे बनाने का हुक्म देता है। मैं यहाँ आपके सामने एक विक्टिम की हैसियत से खड़ा हूँ। मैं वहाँ गुज़श्ता 1.5 साल लड़ता रहा हूँ और मुझे एक इंतहाई झूठे और बोगस उसमें मौलवियों को पीछे लगाकर, एजेंसियों को पीछे लगाकर ब्लास्फेमी का केस मुझ पे डाला गया। जिससे भी बात की, हमने जिससे बात की उसने कहा जी हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है ये कौन कर रहा है, हमें नहीं पता है ये कौन कर रहा है। सदर से लेके वजीर आजम से लेके डिप्टी कमिश्नर तक एवरीबॉडी ये कहता है कि हमें कोई पता नहीं है जी इसके पीछे कौन है। तो इसलिए हम ये कहते हैं उस अनवार उल हक से, उस चोर से, उस चोरों के सरबराह से कि तुम्हारा ये काला कानून जो है वो अमेरिका से लेके तो मुजफ्फराबाद तक हमारे जूते की नोक पर है। हम कोई गिरफ्तारियों से, हमारा कोई साथी, हमारा कोई हुर्रियत पसंद, कोई तरक्की पसंद, कोई आज़ादी पसंद ना गिरफ्तारी से डरता है, ना मुकदमे से डरता है, ना FIR से डरता है, ना तुम्हारी पुलिस से और तुम्हारे सरकारी गुंडों से और तुम्हारे मंशियात फरोश और शराब खोर वजीरों से जो है वो हम डरते हैं, या ना हमारा कोई साथी डरता है। ये तहरीक जो जारी है, हम सारे उस तहरीक की पुष्ट पर हैं। ये काला कानून फौरन वापस लिया जाए। ये जितनी भी बोगस FIR जो काटी गई हैं और जितने भी लोग जो हैं वो वहाँ पे गिरफ्तारियां पे जिनकी की गई हैं, गिरफ्तार शुदगान को रिहा किया जाए। जो वादे तुमने अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाजों के दौरान अवाम से किए हैं, जो मायदे किए हैं, वो पूरे किए जाएं
اور اس کالے قانون کو فی الفور واپس لیا جائے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں لڑنے والے، وہاں گرفتار اپنے ساتھیوں کو جن پر مقدمے ہیں ان کو خراج تحسین، ان کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ فتح تک جو ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ لڑائی ہم سب کی مشترکہ لڑائی ہے اور انشاءاللہ یہ لڑائی جیت کر دم لیں گے۔ بہت شکریہ۔